السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک چھوڑ دیجیے، ٹھیک۔ بارگاہ رسالت معام میں درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور نبی امی باری باری وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے امام صاحب اور علماء کرام تشریف رکھتے ہیں کہ آپ کو جو بیان کریں وہ آپ سنیں۔ حکم ہوا ہے تو 10 منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوں، اپنا نصیبہ سمجھتے ہوئے اور سعادت مندی سمجھتے ہوئے۔ اس وقت ہم اور آپ دنیا کی سب سے اچھی جگہ پر بیٹھ کر سب سے اچھوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسجد دنیا کی سب سے اچھی جگہ، اس سے اچھی جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتی، اس لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ سعادت مندی میں بھکتی ہے۔ اللہ جسے نصیب فرمائے، یقیناً یہ اسی کا حصہ ہے۔ آج کی رات ایک عظیم رات ہے، جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شب اسرا کے بوڑھا محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور رحمت الہی نے میزبانی فرمائی۔ یقیناً آج کی اس رات میں ہم اور آپ جتنی بھی خوشی منائے کم ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب خاص میں تشریف لے گئے۔ اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے وہ، اور یہ معراج کا پورا واقعہ آپ لوگوں سے سنیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یعنی پاک ہے وہ ذات، سبحان کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس ذات کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے، پہلے اس ذات کو دیکھ لیا جائے، اس ذات کے بارے میں سمجھ لیا جائے۔ تو سبحان اللہ کہا گیا، یعنی تمام عیبوں سے، تمام برائیوں سے وہ ذات پاک ہے، منزہ ہے تمام عیوب سے۔ تو اب جب تمام عیبوں سے وہ ذات پاک ہے تو یقیناً وہ جو کہے وہ سچ ہے، اور جو بتائے وہ سچ ہے، بغیر چونچیرا کہ اس کی بات کو مان لینا یہی ایمان ہے۔ پھر کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، تیزی کے ساتھ لے چلا اپنے خاص بندے کو رات لیلا، چھوٹے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تنکیر کا لفظ ہے تو اس سے ایک دم قلیل مراد ہے۔ تو یہاں عبد کہا اپنے بندے کو، خدا کے بندے تو سب ہیں، لیکن کس کو سمجھا جائے؟ عبد جو کہا جا رہا ہے وہ کس کو سمجھا جائے؟ تو عبد جب مطلق بولا جائے گا تو مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتے ہوئے اپنے فرد کامل کو شامل ہوا کرتا ہے، اور اب بندوں میں سب سے کامل بندے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہاں عبد ہی سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، کیونکہ بندے پر اور سب کا اطلاق تو ہوتا ہے، لیکن جب بندہ مطلق بولا جائے گا تو وہ مصطفیٰ خاص بندہ اور کامل بندہ، مکمل بندہ مراد ہوگا، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے محبوب کو، اپنے پیارے بندے کو لے کر راتوں رات کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اتنا ماننا معراج کی رات میں، اتنا ماننا، یہ جو ہے
हमारे एतकाद में फर्ज है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में मक्का से बैतुल मक़दिस तक आप तशरीफ ले गए, और इसका इनकार कुफ्र है। अगर कोई इतना का इनकार करता है तो नस्से कुरानी का इनकार करता है, वो कुफ्र। और फिर वहाँ से मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया मुरसलीन तशरीफ़ लाए, वहाँ नमाज़ पढ़ाए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जिब्रील अमीन लेकर चले तो पहले आसमान का दरवाजे को खुलवाया गया, वहाँ फरिश्ते मौजूद रहे, वो पूछे। फिर और दीगर आसमान पर दीगर अंबिया मुरसलीन भी मुलाकात किए। ये सारी चीज़ें सहाय सिद्ध की अहादीस करीमा से और अहादीस शरीफा से साबित है। उसका इनकार करने वाला गुमराह बदमज़हब बदी है। तो और मक्का से बैतुल मक़दिस तक जाने में तेज़ रफ्तार से अगर कोई चले तो 1.25 महीने का रास्ता है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, रात के छोटे हिस्से में मैं अपने महबूब को मक्का से बैतुल मक़दिस तक ले गया। इस बात को मानना कुरान से साबित है कि अगर इनकार करता है तो कुरान का इनकार हो रहा है। पता जो पहले जहन को मॉडिफाइड किया गया कि पहले इतनी बात मान ली जाए जो आम इंसानों से सादिर नहीं हुआ करती है। जब लोग इतनी बात मान लेंगे तो उनका जहन आमादा हो जाएगा और दीगर बातों को तो आसमान के ऊपर जाने पर तो यहाँ मक्का से वहाँ बैतुल मक़दिस तक आप तशरीफ ले गए और उस 1.25 महीने के रास्ते को मुख्तसर हिस्से। फिर वहाँ अंबिया मुरसलीन मौजूद हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं और तमाम अंबिया मुरसलीन नमाज पीछे मुक्तदी बन के। यहीं से ये भी पता चल गया कि तमाम अंबिया मुरसलीन के सईद और सरदार मुस्तफ़ा जान रहमत हैं। कोई नबी मुस्तफ़ा जान रहमत के जैसा नहीं हो सकता। जब मुस्तफ़ा जान रहमत की तरह कोई नबी नहीं हो सकता है तो बंदा तो कोई आम बंदा, कोई आम मुमिन ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि मुस्तफ़ा हमारे। दूसरी चीज़ ये कि तमाम अंबिया मुरसलीन को ये इख्तियार अल्लाह तबारक तआला ने दिया है, वो जब चाहे जहाँ चाहे आए जाएं, जिस तरीके से चाहे आए जाएं। यही तो वजह थी कि मेराज की रात में उनको ये भी पता चल गया कि मुस्तफ़ा जान रहमत लाए जा रहे हैं, रात के छोटे से हिस्से में लाए जा रहे हैं, मक्का से बैतुल मक़दिस लाए जा रहे हैं। तभी तो कोई मिस्र में मदफून है वहाँ से चला आ रहा है, कोई कहाँ मदफून है वहाँ से चला आ रहा है। सारे अंबिया मुरसलीन अपनी कब्रों से उठकर बैतुल मक़दिस पहुँच गए हैं। यहीं से सारे अंबिया का तसर्रुफ साबित होता है कि अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया मुरसलीन को तसर्रुफ दिया है, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। फिर यहाँ इमामत की जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज मुर्दों पर नहीं है, जिंदों पर नमाज है। पता चल गया मुस्तफ़ा जान रहमत और तमाम अंबिया मुरसलीन अपनी कब्रों में जिंदा हैं, दुनियावी हकीकी जिंदगी की तरह जिंदा हैं और इबादतें करते हैं और उनकी इबादतें कबूल हुआ करती हैं। यहाँ से ये भी साबित हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया मुरसलीन इमाम जो है पीछे हाथ बांधकर खड़े हुए और ये समझ में आ गया कि मुस्तफ़ा जान रहमत तमाम अंबिया मुरसलीन के सरदार हैं। फिर आपको लेके जाया गया सिदरा के आगे जहाँ मलक की भी रसाई नहीं है, वहाँ भी आप तशरीफ़ ले गए। लोग इतराज़ करें अगर तो वो उनको करने का हक है कि जो है ऐसा नहीं है, अक्ल के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो उसी को मोजज़ा कहा जाता है। लेकिन ये मेराज का वाक़या और मुस्तफ़ा जान रहमत के ये ख़ैरात अक्ल के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुरान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये ख़ैरात ज़ाहिर फरमा दिए हैं कि वो दिमश्क से आते हैं तो कैलूला कहाँ फरमाते हैं, जब 1 महीने का रास्ता हुआ करता है। उनके सामने उनका गुलाम लम्हे भर में पूरा तख्त उठा के लेकर चला आता है और पलक झपकते ही तख्त हाजिर हो जाया करता है। तो ये सारी चीज़ें अंबिया मुरसलीन के लिए पहले भी साबित हैं। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए लम्हे भर में ये साबित हो जाए तो क्या हरज हो सकता है इसमें। इसलिए इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। एक पढ़ा लिखा तबका ये कह सकता है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आसमान के पार भी गए हैं और इतनी रफ्तार में गए हैं कि कुंडी हिलती रहे, पानी गर्म रहे, न पानी वो बिस्तर गर्म रहे, पानी चलता रहे। हम ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम साइंस जानते हैं, हम टेक्नोलॉजी जानते हैं,
हम उनसे कहेंगे साइंस जानने वाले को तो ये बात और तेजी के साथ मान लेना चाहिए। जब इंसान की बनाई हुई मशीन में ये ताकत है कि वो यहाँ बैठे बैठे वहाँ की बातें देख सकता है, सुन सकता है, तो अल्लाह तबारक तआला के बनाए हुए सैयदुल मुरसलीन के में ये ताकत क्यों नहीं आ जाएगी? अल्लाह जिसे चाहता है, जो चाहता है करता है। अल्लाह के अंदर ये कुदरत मानना पड़ेगा कि अल्लाह अगर चाहे तो लम्हे भर में किसी को बुला सकता है और किसी को भेज सकता है। देखते नहीं जिब्रील अमीन तो लम्हे भर में ही आते थे, वही लेकर जिब्रील अमीन अगर अर्श से लम्हे भर में आ सकते हैं तो सैयदुल मुरसलीन आज जमीन से अर्श पर क्यों नहीं जा सकते हैं? जिस नबी को मानते हो उस नबी की तुम्हें मानना पड़ेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत का ये ताकत और कुव्वत जो उनका नबी होना ही इस बात पर दलील है, और हम नबी मानते हैं इस बात पर दलील है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यही तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया था। लोगों को फारे कुरैश ने जब कहा कि जो है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो लम्हे भर में कहाँ कहाँ गए हैं, तो हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं अगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने माना है, इरशाद फरमाया है, तो यकीनन सही कहा है उन्होंने। इमाम राज़ी इरशाद फरमाते हैं गोया कि सिद्दीक़ अकबर अपने ज़बान हाल से कह रहे थे जब मैं उनको नबी मान लिया हूँ तो अब वो जो भी कहेंगे मानना पड़ेगा, तो अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन मानूंगा। तो ये नबी जब हम मान लिए तो नबी हम क्यों माने? उन्होंने कहा ना कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो यही तो नबी का मानना हुआ। लस्ता मुरसलन का ही इनकार था, यानी तुम मुरसल नहीं हो, भेजे हुए नहीं हो, ये कुफ्फार का जो है कुफ्फार कहते थे। इसी बात को तो साबित जो कर दे वही मोमिन हुआ करता है कि नहीं वो भेजे हुए हैं। जब भेजे हुए हैं तब मान सकते हो, तो बुलाए हुए हैं क्यों नहीं माना जा सकता है? जरूर माना जाएगा। और नबूवत नबी होने के लिए और तुम नबी के उम्मती हो, इस बात पर दलील यही है कि नबी जो फरमाएंगे वो सच है और वो जो फरमाएंगे माना जाएगा। इसी को तो सिद्दीक मैंने गोया कि मेराज के वाक़ये की तस्दीक कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। दुनिया उन्हें सिद्दीक अकबर कह रही है। आज जो मेराज के वाक़ये की तस्दीक करेगा यकीनन सिद्दीक अकबर के गुलामों में लिखा जाएगा, और अगर मेराज के वाक़ये की तस्दीक न करे तो वो गुलामों में नहीं हो सकता, सिद्दीकी नहीं हो सकता, सिद्दीक अकबर का मानने वाला नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, अब्दी कहा है यहाँ, तो लोगों को ये हो सकता है कि नहीं वो ख्वाब में मेराज हुई है, रूहानियत की मेराज हुई है। इमाम राज़ी तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं अब्द मुरक्कब होता है, रूह और बदन से दोनों पर उसका इतलाक होता है। इसीलिए तो इससे पहले कुरान में 30वें पारे में शायद फरमाया गया है और उनको देखते नहीं जो बंदे को अब्द को जो है नमाज पढ़ने से रोकते हैं। तो अब्द यहाँ कहा गया, अब्द मतलब क्या है? रूह और जिस्म से जो पूरा मुकम्मल हो वो उस पर अब्द का इतलाक होता है। पर समझ में आ गया है कि यहाँ भी मुराद जिस्म और रूह का मुरक्कब होना है, और जिस्म और रूह के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत मेराज पर गए थे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत मेराज पर गए थे। हाँ, जो लोग एक साइंस और टेक्नोलॉजी को मानते हैं उनको एक फार्मूला बता दूं, साइंस वाला ही। साइंस का एक फार्मूला है, जब कोई चाल जिसे बेग कहा जाता है साइंस के अल्फाज में लफ्ज में बेग, जब उसकी चाल प्रकाश के चाल से बराबर या उससे ज़ायद हो जाए, लाइट के चाल से ज़ायद हो जाए, तो बीच के सारे काम शून्य हो जाया करते हैं। ये साइंस का फार्मूला है। आज साइंस ये कह रही है अगर लाइट की जो रोशनी, सूरज की जो रोशनी है, इसकी रफ्तार से कोई चीज आगे हो जाए, तेज हो जाए, तो उसके बीच के सारे काम शून्य हो जाया करते हैं। अब यहाँ देखो बुराक जिससे मुस्तफ़ा जान रहमत गए हैं, वो सूरज की लाइट की रफ्तार से तेज थी, और तेज होने की बुनियाद पर बीच के सारे काम शून्य हो गए। जब बीच के सारे काम शून्य हो गए तो कुंडी हिलती रही तो हिलती रही, पानी चलता रहा तो चलता रहा, बिस्तर गर्म रहा तो गर्म रहा। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत पर सच्चा ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए, मज़हब हक़ पर साबित कदम रखे, शाह मीना के दरबार में रहने वाला मुस्तफ़ा पर इतना एतकाद रखेगा कि वो कहेगा अपने ज़बान हाल से कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। शाह मीना
एक वक्त में न जाने कितने पत्तों पर कुरान की तिलावत करते हैं। आप क्या जाने उनके आका, उनके सैयद, उनके सरदार कितना करेंगे। अल्लाह तबारक ताला बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, वलियों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और शब मेराज को इबादतों का ज़खीरा बनाए हमारे लिए, क्योंकि हमें और आपको यहाँ इबादत करनी है आज की रात, और तहद करना है। हमारी जो नमाज़ें क़ज़ा हैं उसको इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे, और आज से हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी। अगर हम ये अहद कर ले रहे हैं आज की रात, तो यकीनन ये रात कामयाब है, कामरान है, और हमारे लिए बख्शिश की ज़मानत है।